thermo is related to. Yes. Sir. So thermo is directly related to heat and energy. And dynamics means motion. So generally thermodynamics, in thermodynamics, we deal with the transfer of heat and energy in different forms and how we utilize in our daily technological processes. Yes. Good. And next point is regarding to explain a system surrounding, isolate, close, open system. Yes, sir. Yes. So, Can you? yes, sir. System is that area, sir, which is under our observation, जिसकी हम study कर रहे हैं, sir. Where that particular apparatus is known as system. Then the system और sir system के अलावा बाकी जो भी environment है, अपने जितना भी universe बच गया है system के अलावा, जो interact कर रहा है हमारे system पे, जो है system के ऊपर कुछ effect डाल रहा है, वो कहलाता है हमारा surrounding. आंसर सिस्टम और सराउंडिंग एक इन दोनों को जो सेपरेट करती है बाउंड्री, एक क्लियर सेपरेशन होता है, लेकिन वो सर वो रियल भी हो सकता है, वो इमेजिनरी भी हो सकता है, बट जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज बाउंड्री. Yes. And now sir, on the basis of boundaries we can divide our system in three parts, that is isolated, that is open, closed and isolated. सर ओपन सिस्टम वो होगा जहां पे एनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज किया जा सकता होगा. क्लोज सिस्टम में सर हम ओनली एनर्जी को एक्सचेंज किया जा सकता है, मैटर को एक्सचेंज नहीं करते हैं. मोस्टली सर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम क्लोज सिस्टम को पढ़ते हैं, मेनली इन द केस लाइक आइसोथर्मल सिस्टम. There we have to exchange the energy so that the temperature remains constant, like we have to use diathermic walls. डायथर्मिक वॉल्स यूज करेंगे ताकि हीट का ट्रांसफर हो सके, वो क्लोज सिस्टम में स्टडी किया जाता है सर. और एक आइसोलेटेड सिस्टम सर वो क्लोज सिस्टम्स होंगे जिसमें एनर्जी को भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता और मैटर को भी नहीं किया जा सकता. Yes, good answer, well done. Next point is regarding to thermodynamics, first law of thermodynamics. Can we explain with an example? Sir, first law of thermodynamics is generally the law of conservation of energy, that the energy of the universe remain constant. It can neither be created nor be destroyed, but it can be transformed from one system to the another. Like sir, we can take the example of simple any working substance. Suppose that we have a beaker. In beaker there is water. At सर इसके नीचे हमने लगा दिया यहाँ पे बढ़ने लगाया, तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं सर, हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं, हीट ऊपर जा रही है. अब ना जो सिस्टम से होंगे सर, इससे हमने बाहर से एनर्जी दी है, बाहर से एनर्जी दी है मतलब सराउंडिंग से कोई एनर्जी हमारी सराउंडिंग से एनर्जी डिक्रीज हो गई है सर, लेकिन सराउंडिंग से एनर्जी दी है तो सिस्टम के पार्टिकल्स की जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी सर, वो इंक्रीज हो जाएगी. उसके कारण क्या होंगे ये सर, दिस विल स्टार्ट मूविंग इन अ रैंडम डायरेक्शंस. तो हम कह सकते हैं सर यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज हो गई है सिस्टम की एनर्जी. तो सर एक जगह से एनर्जी डिक्रीज होगी, साइमल्टेनियसली दूसरी जगह एनर्जी इंक्रीज होगी. ओवरऑल एनर्जी क्या होगी सर, हमारी कंजर्व्ड रह जाएगी. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. Yes, good answer, well done. And sir, mathematically we can say that सर मैथमेटिकली जो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो दो चीज से मिलकर बन सकती है सर, हीट से एंड वर्क से. इट कंप्राइजेस ऑफ टू थिंग्स, हीट एंड वर्क. तो दो मोड्स हैं जिससे हम इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं, एंड दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. Yes, good. First law of thermodynamics, what is the uses of first law of thermodynamics in society, in civilian? Can you explain? Sir, all the engines work on the first law of thermodynamics, sir. And sir, normally every physical change, any chemical change taking place in the environment is related to the first law of thermodynamics, because energy is conserved always. Mass can be converted into energy like in nuclear reactions, but there also energy is conserved. So, sir, first law of thermodynamics, every system is working on the basis of this. Okay, good. And what is the application of first law of thermodynamics?
So first law of thermodynamics is used to tell us about the internal energy, and then from the internal energy we can also compute enthalpy. सर एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी से हम किसी भी मॉलिक्यूल की हीट कैपेसिटीज को पता लगा सकते हैं. हीट कैपेसिटीज को पता लगा के हम ये देख सकते हैं सर कि उस मॉलिक्यूल को कितनी हीट दी जाएगी जिससे उसमें एक पर्टिकुलर हमारा जो डिजायर्ड टेम्परेचर राइज है वो हो सके. सर इसी फिनोमिना को यूज किया जाता है, इसी को मेजर करते हैं सर आगे, जैसे बॉम्ब कैलोरीमीटर में इसमें यूज करते हैं. एंड सर इसी फिनोमिना को बेसिस साइंस को यूज करके आगे टेक्नोलॉजिकल मशीन्स को डिजाइन किया जाता है. Okay, good answer. Next point regarding to first law of thermodynamics. Any limitations of first law of thermodynamics? जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बता देता है कि प्रोसेस में एनर्जी का कंजर्व रहना जरूरी है, बट इट डज नॉट टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस. दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहेगा कि अगर आपने किसी सब्सटेंस को कोई एनर्जी दी है तो दूसरा सब्सटेंस वो एनर्जी ले लेगा, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, बट डायरेक्शन नहीं बता सकता है ये हमारे जो मतलब जैसे जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की नहीं बता सकता है. सपोज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि सर हमारा कोई पेपर है, अगर उस पेपर को थोड़ी सी इग्निशन मतलब वो पेपर क्या होगा, उसका कंबशन होगा ऑटोमेटिकली, कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर वो कन्वर्ट हो सकता है. जैसे कि या फिर किसी भी फ्यूल है हमारा उसका कंबशन होगा, लाइक वी टेक एन एग्जांपल ऑफ C2H6, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, CO2 प्लस में H2 बना देगा. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बता देगा कि ये फिजिबल है, लेकिन ये रिएक्शन कब होगी, कितने उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या किस डायरेक्शन में जा सकती है. अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एनर्जी कंजर्व्ड है तो दैट मींस हमारे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनना चाहिए, बट ऐसा तो कभी नहीं बनता है. दिस ऑल इज एक्सप्लेन्ड बाय द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. Yes, good answer. First law and second law of thermodynamics, and what is the difference between first law and second law of thermodynamics? First of all, we did a question regarding to first law of thermodynamics. This equation del E is equal to Q plus W. What is the effect of W in this first law of thermodynamics? Suppose that W is neglected. What sir? Can you repeat the question, sir? First law of thermodynamics equation del E is equal to Q plus W. Yes, no. What is the effect of Yes, sir. W in first law of thermodynamics? Yes, अगर sir. हम W को हटा दें, आप इक्वेशन लिखिए पहले. Sir, W को हटा देते हैं. Yes, Yes, sir. I have removed it. yes. So what is the effect? What the region of replaced by W? Work done. सर वर्क डन हमारा हम जो थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं वो एक्सपेंशन वर्क को स्टडी करते हैं सर. Yes. एक्सपेंशन वर्क मींस चेंज ऑफ वॉल्यूम जहां हो रहा होगा एट अ प्रेशर, चेंज ऑफ वॉल्यूम हो रहा होगा. अगर हमने यहाँ नेग्लेक्ट किया है दैट मींस अगर वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रही है तो सर दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी डेल्टा चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. Yes, sir. It or we can say that Q at constant volume, heat supplied at constant volume. That is the internal energy, and it will give us the value of our heat capacity. Yes, good. Del E is equal to Q plus W. And suppose that Q is replaced and del E is equal to W. So what is the effect of this first law of thermodynamics? So if we replace like this, if this is removed. Suppose that Q is constant. What sir? Suppose Q is constant. So what is the effect of this complete reaction? A complete law means yes है del E is equal to Q plus W है. इसमें से हम Q को हटा दें तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर Q अगर हम हटा रहे हैं that means we are not supplying कर रहे हैं तो इससे पूरे लॉ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या कंडीशन होगी इसको हटाने के लिए? सर एडियाबैटिक कंडीशंस के अंदर Q 0 होता है सर हमारा. यस यस सर. तो अगर हम Q नहीं हटा रहे तो भी जो भी हमारा वर्क डन होगा सर वो किसके बेसिस पे होगा, वो इंटरनल एनर्जी के चेंज के बेसिस पर होगा. लाइक सपोज वी इफ वी आर डूइंग द एक्सपेंशन वर्क एंड अगर हमने हीट सप्लाई नहीं किया तो मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी उस एक्सपेंशन को कराने के लिए, और मॉलिक्यूल में क्या आएगा, कूलिंग आएगी सर.
So this will be the effect of removing the heat, and the physical significance of this equation delta U is equal to W. Yes. एंड सर अगर हम कंप्रेशन करेंगे वर्क के फॉर्म में तो सर हमारी इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली इंक्रीज हो जाएगी, क्यों का इफेक्ट नहीं होगा इसके ऊपर, एंड इट विल लीड टू हीटिंग। ऐसा कभी कंडीशन हो सकती है डेली इज इक्वल टू 0? यस सर, डेल इज इक्वल टू 0 हो सकता है अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं सर। यस यस, गुड आंसर, वेल डन। Next question is your regarding to chemical thermodynamics. First law of thermodynamics and second law of thermodynamics. So what is the difference between first law and second law? सर पहले मैं इसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करना चाहूंगा ताकि वो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस को बता सके। यस गुड। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें सर ये बताता है दैट हाउ द हीट एंड वर्क actually works in the system और surrounding। सिर्फ जैसे हमने हीट देखा, हीट क्या होता है, वो हमारा डिसऑर्डरली मोशन को इंड्यूस करता है सराउंडिंग्स के अंदर, लेकिन वर्क क्या होता है, हमारा वर्क करता है और ऑर्गेनाइज्ड मोशन को इंड्यूस करता है सराउंडिंग्स के अंदर। तो जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि कोई भी प्रोसेस हमारा मैक्सिमम एंट्रोपी की तरफ जाना चाहेगा, मैक्सिमम रैंडमनेस की तरफ जाना चाहेगा। मैक्सिमम रैंडमनेस का मतलब क्या हो सकता है सर, हम इसको बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से समझ सकते हैं सर। उसमें ये होता है कि हमारी जो एनर्जी होती है वो अलग अलग लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, लाइक अलग अलग लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अगर कोई भी जो मैक्सिमम रैंडमनेस का मतलब क्या है, हमारे कोई कुछ पार्टिकल्स है जो यहाँ भी प्रेजेंट है, इस एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। तो सर अगर कोई पार्टिकल्स होंगे वो जो सभी एनर्जी लेवल्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं या फिर एक से ज्यादा रैंडमनेस को शो कर रहे हैं, तो उनकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी वो सिस्टम में पाए जाने की। एंड दिस इज आल्सो नेचुरल थिंग, दिस विल बी नेचुरल थिंग। अदरवाइज सर अगर हमारा कोई मिनिमम रैंडमनेस की तरफ जा रहा है, मतलब पार्टिकल ऑलरेडी डिसऑर्डर्ड है और वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जा रहे हैं, दैट ऑलवेज रिक्वायर्स सम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, वो अपने आप कभी भी नहीं जा सकते हैं। ये हमें ये बताते हैं सर, जो हमारा वर्क होता है, वर्क कैन इंड्यूस द हीट बट हीट कैंट इंड्यूस द वर्क, एंड एंड सर इसी के कारण हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जो कोई भी प्रोसेस होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा एक ही डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और सर इस हीट एंड वर्क की थ्योरम से ही हम बता सकते हैं कि हमारा कोई भी एक ऐसा इंजन अभी तक नहीं बना है जो कंप्लीटली हमारी हीट को वर्क के अंदर कन्वर्ट कर सके। देयर विल ऑलवेज बी अ लॉस, सम साइड लॉस, एंड so we can say that no perpetual machine can be created which can completely convert the heat into work. So this is our second law of thermodynamics. It removes the limitation of first law of thermodynamics, that we can from there we can't tell in which direction our system is heading towards. And sir also I can just add that this system includes two things, like increase in energy, so decrease in energy, and increasing randomness. हमारे कोई भी प्रोसेसर वो स्पॉन्टेनियस कब हो सकते हैं, जब उसमें दोनों चीजें फॉलो हो रही है, एनर्जी डिक्रीज हो रही हो या फिर एंट्रोपी हमारी इंक्रीज हो रही हो। अगर एक चीज अपोजिट है तो दूसरे को कंपनसेट करना पड़ता है, लाइक इन एंडोथर्मिक रिएक्शंस इट शोज दैट हमारी जो क्या कहते हैं एनर्जी इंक्रीज हो रही होती है, बट एंडोथर्मिक रिएक्शन जब टेक प्लेस करेंगे अगर हमारी इंक्रीज इन रैंडमनेस उसको कंपनसेट करनी। So this is all about second law of thermodynamics, and it can't be explained using the first law of thermodynamics. Yes, good, well done, good answer. Next is third law of thermodynamics. So third law of thermodynamics. First of all, any question regarding to second law of thermodynamics? Applications of second law of thermodynamics. Sir, second law of thermodynamics is used in making every engines, heat engines and the refrigerators both. Second law of thermodynamics. And sir, also it gives to the rise of phenomena which we call as Gibbs free energy. And Gibbs free energy is Gibbs free energy से ही हम आज के टाइम पे ये बता सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, ये बेस्ट मेथड है उसके लिए। And this all arise due to the second law of thermodynamics.
Yes, good. एंड सर इससे जो हमारी एफिशिएंसी आती है वो हम एक मैक्सिमम एफिशिएंट इंजन को पता लगा सकते हैं। एंड फॉर अगर हम एक मैक्सिमम एफिशिएंट इंजन को पता लगा लेंगे तो वो एक तरीके से हमारे पास आइडियल केस हो जाएगा। एंड वी यूज्ड टू डिवाइस सच इंजन्स बट व्हिच गोज टुवर्ड्स दैट perfection. Yes, is good. And what is the limitation of second law of thermodynamics? So second law of thermodynamics as such it has no limitations, but I think sir. But one thing is that second law of thermodynamics हमें जैसे हम आगे कोई भी फॉर्मूलेस निकालेंगे तो उससे हमें लगेगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर को डिक्रीज किया है तो हमारी एंट्रोपी वो डिक्रीज हो रही है। लेकिन एक उस हिसाब से अगर हम सोचे तो टेम्परेचर जीरो पे आने पर एंट्रोपी जीरो हो जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एंड द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि उस टाइम पे भी कुछ जो नॉन परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनमें कोई ना कुछ रैंडमनेस रिमेनिंग रहती है एंड दैट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो as such there is no limitations in the second law of thermodynamics. Yes, good. And what is the benefit and what is the uses of second law of thermodynamics in a society and civilian? Sorry sir, can you repeat the question? What is the benefit in second law thermodynamics on society and civilian? मतलब सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स से हमारे समाज में क्या फायदा हो सकता है और उससे क्या फायदे हो रहे हैं, उसके कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? सर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डायरेक्टली हमें बताता है कि कोई भी प्रोसेस लाइक फिजिकल सिग्निफिकेंस लाइफ में हम देखते हैं कोई भी हॉट सब्सटेंस होगा वो रूम पे रखे रूम टेम्परेचर पे रखे ऑलरेडी कोल्डनेस की नहीं, तरफ ये जाएगा वो आंसर ठंडा नहीं, ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स से जो भी हम चीज बनाते हैं उससे हमारे समाज में कोई बेनिफिट हो रहा है, ऐसा कोई एग्जांपल है आपके पास जो आप बता सकें कि सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स से हमारी सोसाइटी में बेनिफिट हो रहा है, सिविलियन मतलब लोग इससे फायदा उठा रहे हैं, इसके द्वारा ऐसा चीज वन होता है? सर अभी तो एक ही एग्जांपल मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ दैट इज द मेकिंग ऑफ इंजन्स। लाइक पहले जो हमारे फ्यूल्स के आते थे अब मिथेनॉल या इथेनॉल का यूज करके इंजन्स बनाए जा रहे हैं, उनकी ज्यादा एफिशिएंसी है। दे Yes. आर इससे हमें ये पता लगा कि हमारे इंजन में सोर्स जो टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक इन दोनों पर ही एफिशिएंसी को डिपेंड करेगी हमारी। तो हमें कोई ना कुछ ऐसे डिवाइसेस बनाने हैं जो हमारे लॉस को कंपनसेट कर सके, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ सोर्स और सिंक को तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम जो एक्स्ट्रा लॉसेस होते हैं उनको जितना मिनिमाइज से मिनिमाइज कर सकते हैं और नए इंजन्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिसमें हेल्प करते हैं सेकंड। Yes, good answer. Next is third law of thermodynamics. सॉरी सर, Third law of thermodynamics. थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Yes. सर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कि अगर हमारा कोई भी सब्सटेंस परफेक्टली क्रिस्टलाइन है और अगर टेम्परेचर हम बिल्कुल जीरो पे लेके जाते हैं यानी जीरो केल्विन पर लेके जाते हैं उस टाइम पे उसकी एंट्रोपी जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर इसकी साइमल्टेनियसली एक और थिंग आती है साथ में कि जब भी हमारा टेम्परेचर या क्रिस्टल हमारा नॉन परफेक्टली क्रिस्टलाइन है और नॉन परफेक्टली क्रिस्टलाइन है तो सर उसके अंदर कुछ ना कुछ रैंडमनेस रह जाएगी, दैट इज ड्यू टू द vibrational motions of the molecules present in the substance. And so third law of thermodynamics हमें हेल्प करता है आगे सॉलिड्स की हीट कैपेसिटीज को यूज करके उनको ट्रांसफॉर्मेशन का एक्चुअल सर एस की वैल्यू निकालने में, हमारी एंट्रोपी की वैल्यू निकालने में हेल्प करता है हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि सर फर्स्ट लॉ सेकंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम चेंज निकाल सकते थे वो हमेशा, चेंज इन डेल्टा एस निकाल सकते हैं, चेंज इन डेल्टा यू निकाल सकते थे। लेकिन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से सर हम एंट्रोपी की एक्चुअल वैल्यू को डिवाइस कर सकते हैं। Yes, good. And what is the application of thermodynamics, third law of thermodynamics and limitations? So third law of thermodynamics is given to cure the limitations of first and second law of thermodynamics. सर इसने जो स्टेटमेंट दी है वो हमारी बेस्ड है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पर। अगर से और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स प्योरली बेस्ड है अजम्पशंस पर, इसलिए सर हम ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कोई लिमिटेशंस होंगी।
बट सर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मेन एप्लीकेशन ये है कि ये हमारी एंट्रोपी को निकालने में हेल्प करता है, और सर इस एंट्रोपी की स्टडी से हम जो फेज ट्रांजिशन पढ़ रहे होते हैं आगे, उसमें भी हेल्प होती है सर। Yes, good, good. And what is the difference between first, second, and third law of thermodynamics? Only one point, major one point. सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें सिर्फ ये बताता है कि चेंजेस पॉसिबल है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है हमें चेंजेस किस डायरेक्शन में पॉसिबल है। एंड सर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें एंट्रोपी बताता है एट जीरो केल्विन। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअल एंट्रोपी की कैलकुलेशंस को या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को यूज करने के लिए मिलता है। आल्सो सर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रेजिडुअल एंट्रोपी के कांसेप्ट को दिखा देता है हमारा, एंड दैट रेजिडुअल एंट्रोपी का कांसेप्ट हमें स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की तरफ लेके जाता है सर। बट सर जो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिस तरह हम एक्सप्लेन करें, उस तरह से थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ सॉरी। Yes, कोई नहीं। नेक्स्ट, इसमें ऐसा कोई पॉइंट है जो सिमिलर हो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में? ऐसा कोई पॉइंट आपको लगता है कि इसमें सिमिलरिटी है, कुछ सिमिलरिटी है? एनी सिमिलरिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स? सर ये सभी हमारे क्या कहते हैं रिएक्शंस के हीट और वर्क के जो ट्रांसफर होते हैं उन्हीं को स्टडी करने के लिए हेल्प कर रही होती है हमारा ये। गुड, गुड आंसर अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। टुडे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है ना, नेक्स्ट डे डीपली स्टडी। नेक्स्ट टॉपिक इज योर केमिकल इक्विलिब्रियम। यस, ऑन बोर्ड। कैन यू एक्सप्लेन केमिकल इक्विलिब्रियम विद एग्जांपल एंड विद रिएक्शंस? सर केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा वो होता है, कैन आई यूज द हैव द टेक द हेल्प ऑफ बोर्ड सर? Yes, yes, sure. Now you use board. Yes. सर केमिकल इक्विलिब्रियम वो स्टेज होती है जहां हमारी रिएक्टेंट्स जिस रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसी सेम रेट से प्रोडक्ट हमारे रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। These are converting and this position is dynamic. सर वो कर रहे हैं लेकिन हमें ऐसा फील होगा that the reaction has been stopped. But actually chemical equilibrium means that the rate of the conversion of reactant and the product gets same at a particular composition. सर एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं लाइक नाइट्रोजन प्लस में 3 moles of hydrogen combines to form ammonia. सर इस केस में क्या हुआ है सर हमारा, सपोज नाइट्रोजन का 1 मोल था, ये रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन सर हमने मान ली इनिशियली ये है नाइट्रोजन की, सपोज ये है हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, और इस टाइम पे अमोनिया की कंसंट्रेशन है 0। एक टाइम पर क्या होगा सर, जो हाइड्रोजन है वो हमारे कन्वर्ट हो रहे हैं, जैसे जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट होगा तो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। नाइट्रोजन सर जो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के लिए 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन कन्वर्ट होंगे, तो सर नाइट्रोजन का स्लोप थोड़ा कम होगा, और साथ में 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बन गए हैं, तो 2 मोल्स से नाइट्रोजन NH3 एक टाइम पे बढ़ रहा होगा धीरे धीरे, बट एक स्टेज आएगी आगे, उस टाइम पे सर इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट। सर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ ये रिएक्शन स्टॉप होंगे, बट जितना ही हमारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे उतने ही हमारे प्रोडक्ट्स भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे थे। दिस इज कॉल्ड द केमिकल इक्विलिब्रियम। Yes, good, good, good. Well done. केमिकल इक्विलिब्रियम में एक लॉ यूज होता है, कौन सा लॉ यूज होता है? सर लॉ ऑफ मास एक्शन। यस, उस और एक प्रिंसिपल भी यूज होता है। प्रिंसिपल यूज सर यही होता है कि जो हमारी गिव्स पे एनर्जी होगी वहां वो मिनिमम होगी एट इक्विलिब्रियम पॉइंट सर, और सर प्रिंसिपल ऐसे मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। एक चिलेटर नाम सुना है? चिलेट। सर ली चैटलियर प्रिंसिपल। यस, यस सर ली चैटलियर प्रिंसिपल सुनिए सर, उसको एक्सप्लेन करें सर। यस, 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 एक्सप्लेन। ली चैटलियर प्रिंसिपल सर एज सच हमारा जो के इक्विलिब्रियम है यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
वो ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, वो कंपोजिशन पे डिपेंड नहीं कर रहा होता है। लेकिन हम ली-चार्टले प्रिंसिपल में ये पढ़ेंगे कि जैसे जैसे हमने प्रेशर को चेंज किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो वही रहेगा, बट वो किसी दूसरी कंपोजिशन पर आएगा। वो दूसरी कंपोजिशन पर कैसे आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, उस चीज को हेल्प करती है, उस चीज को सोल्व करता है हमारा ली-चार्टले प्रिंसिपल। ली-चार्टले प्रिंसिपल में सर हम ये चीज पढ़ते हैं कि अगर हमने कोई भी चेंज किया है, like we have changed the pressure or we have changed the temperature, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो कंपनसेट दैट चेंज, ताकि वो चेंज को कंपनसेट कर सके और दोबारा से अपनी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन कर सके। उस डायरेक्शन के अंदर हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा वो शिफ्ट होगा आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। यस, गुड आंसर। बेसिक नॉलेज ये कंप्लीटली सही है, अच्छा है आपका। बेसिक पॉइंट है। अभी हम ब्रीफली चलेंगे नेक्स्ट मॉक में। अभी हम बेसिक करते हैं। थर्ड टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन रिगार्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स। कैन यू एक्सप्लेन केमिकल काइनेटिक्स बेसिक? Yes sir. यस। Kinetics, in kinetics we deal with the motion, speed of the motion. And sir, chemical kinetics means that how speedily the reactants or chemical reaction is proceeding. It indirectly tells us about the rate of the reaction in which it is heading towards, and we study it in the chemical kinetics. And sir, also in chemical kinetics में sir हम दो चीजें मेन स्टडी करते हैं। पहला तो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन, दूसरी हम स्टडी करते हैं सर इसमें मैकेनिज्म। सर मैकेनिज्म्स को एग्जैक्ट बताने की कोशिश कर सकते हैं, बट वी कांट से ओनली ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक्स कि मैकेनिज्म यही होगा, बट फ्रॉम द रेट लॉज इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन कि व्हाट आर द पॉसिबल वेज इन व्हिच अ रिएक्शन कैन बी मैकेनाइज्ड। यस, गुड। केमिकल काइनेटिक बेसिक है। नेक्स्ट हम डीपली ब्रीफली आगे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो कैन यू एक्सप्लेन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन एंड व्हाट टाइप ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन? यस सर। यस, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस and how many types of pericyclic reaction? सर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पहले नहीं पेरिसाइक्लिक क्यों बोलते हैं, बिकॉज़ दिस इन्वॉल्व्स द साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। यस, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होती है सर इसमें, और इसमें कोई भी आयनिक इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, या किसी भी टाइप के इंटरमीडिएट्स रेडिकल्स का भी कोई फॉर्मेशन नहीं होता है। दे इन एनर्जी की सिर्फ हम प्रोफाइल को डायरेक्ट ऐसे दिखा सकते हैं, दैट रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टिंग इनटू द प्रोडक्ट्स। And so here our cyclic transition state lies. And so pericyclic reaction और बाकी सब organic reactions से special है, because it only involves the use of heat or light, and this there involves the conversion of reactant into the product. So pericyclic reactions को हम divide कर सकते हैं on the basis कि इसके अंदर number of bonds कितने involve हो रहे हैं या number of electrons कितने involve हो रहे हैं। Like suppose सबसे पहला example होता है सर हमारा electrocyclic reactions। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस कौन सी होती है सर, इसके अंदर एक ही कंपोनेंट होता है हमारा, एक ही कंपोनेंट। लाइक सपोज वी हैव अ साइक्लोब्यूटीन सर, इसके अंदर क्या हुआ, ये रिएक्टेंट्स हमारे कन्वर्ट होने के लिए ब्यूटाडाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो सर यहाँ क्या हुआ है, इनिशियली यहाँ पर 1 2 and 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स थे, and these are converted to 3 sigma bonds। अब pi bonds यहाँ सर एक था और यहाँ हो गए 2 pi bond, यानी कि हम इस रिएक्शन में देखते हैं कि एक सिग्मा बॉन्ड का एक pi bond में कन्वर्जन होता है, या अपोजिट एक pi bond का हमारा एक सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्जन हो सकता है। सर दिस इज आवर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन इज द साइक्लोएडिशन रिएक्शन। तो साइक्लोएडिशन रिएक्शन के अंदर दो कंपोनेंट्स होंगे। सपोज सर हम एक लेते हैं डाइइन, एक अनदर एक होता है सर हमारा डाइनोफाइल्स, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवाता है। इसके ऊपर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है, तो हेल्प इट रिएक्ट मोर इजीली वे। सर यहाँ पे जब हमने इसकी रिएक्शन कराई तो हम देखते हैं दीज आर कन्वर्ट, सर साइक्लिक एरोस से हम रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा कोई भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। हम देखते हैं सर इसके अंदर
दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो इस प्रोडक्ट में क्या हुआ है, 2 पाई बॉन्ड्स का लॉस हुआ है और 2 सिग्मा बॉन्ड्स उसकी जगह पे फॉर्म हुए हैं। सर इनका लॉस हुआ है और ये फॉर्म हुए हैं। सर दिस इज आवर साइक्लोएडेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट इज आवर सिग्माट्रोपिक। यस सर सिग्माट्रोपिक रिएक्शन से इसके नाम से पता लगता है यहाँ सिग्मा बॉन्ड का इन्वॉल्व होगा। जैसे ट्रोपिक रिएक्शंस मींस लाइक यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व, कोई नया बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा होता है। जितने ओरिजिनली सिग्मा बॉन्ड होंगे उतने ही फाइनल सिग्मा बॉन्ड होंगे, और जितने ओरिजिनली पाई बॉन्ड होंगे उतने ही फाइनल में पाई बॉन्ड्स होंगे। लाइक सर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, ये हमारा कोई रिएक्टेंट है, इसको सर इसकी नेमिंग करेंगे हम, जो सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है वहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 1 2 3। सर जब हम एरोस को साइक्लिक फॉर्म में रोटेट करेंगे तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेंगे, सर ये हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन से हमें देखते हैं सर जितने इनिशियली सिग्मा बॉन्ड्स थे इतने ही फाइनल सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और फाइनल बॉन्ड हमारा अगर 3 3 के बीच में बना है तो इसके क्या लेंगे 3 3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस। तो ये होते हैं हमारी सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस। इसके साथ में सर हम एक टाइप की रिएक्शंस को और स्टडी करते हैं जिन्हें कहते हैं इन रिएक्शंस। इन रिएक्शंस कौन सी होती हैं सपोज सर, बेस डायरेक्टली और इन रिएक्शन वी कैन से ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस। ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन के अंदर सपोज सर यहाँ पे कोई हमारा एक्स ग्रुप लगा हुआ है एंड दैट इज यहाँ पे एक पाई बॉन्ड आ गया सर, यहाँ एक पाई बॉन्ड आ गया। अब ये जो एक्स है हमारा ये इसी सब्स्टिट्यूएंट में रोटेट होके अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया। सपोज यहाँ अब एक्स आ गया है, ये तो यहाँ पे हम देखते हैं नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स सेम है, जितने इनिशियली थे उतने ही अभी भी हैं, बस ग्रुप का ट्रांसफर हो गया एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर। दीस आर फर्दर इन रिएक्शंस ऑफ ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस, दैट इज वेरी सिंपल। yes good answer. Next one is types of chilotropy reaction. Do you know understand regarding to chilotropy reaction? सर चिलेट्रोपिक रिएक्शंस सर करंटली अभी उसके बारे में इतना पढ़ा नहीं है, बट सर लेकिन इसका पार्ट पढ़ लेना। इसका पार्ट है, एक चिलोट्रोपिक रिएक्शन भी आती है, पेरीसाइक्लिक के टाइप में भी आती है। वैसे तो 4 टाइप्स की रिएक्शन होती है। एक डाइन होता है, डाइन के अंदर SO2 ग्रुप होता है, वो ऐड होता है और एक बाहर ले हो जाता है, बस यही डिफरेंस होता है उसके अंदर। ट्रांसफर सिग्मा बॉन्ड के अकॉर्डिंग ही होता है। उसके बारे में आप पढ़ना, तब उसके आंसर आपको अच्छी तरह से देंगे आप, है ना। सर वो अभी रिवाइज नहीं कर पाया था, टाइम नहीं मिला था इसके लिए, थोड़ा कोई अभी नहीं, अभी तो आज अभी बेसिक करते हैं, अभी बेसिक के अकॉर्डिंग चलने दो, क्योंकि बेसिक ही जरूरी है। क्योंकि फर्स्ट में हम बेसिक आपको आइडिया दे रहा हूँ, उसके बाद मैं डीपली चलूंगा अगले में। अगले में क्या एक टॉपिक होगा तो उसके अंदर एक के ही क्वेश्चन करूंगा। अभी तो एक आइडिया ले लेना, आपकी जो 5 टॉपिक हैं वो कैसे हैं, आपने कैसा पढ़ा है। नेक्स्ट है, अभी भाभा के बारे में भी मैंने क्वेश्चन नहीं कीजिए है, क्योंकि उसके बारे में कल करूंगा मैं। क्योंकि आपने भाभा का फर्स्ट पीडीएफ मैंने अपलोड किया है, उसमें BARC के बारे में सब कुछ, और जो शुरू की वीडियो है 14 वो BARC के बारे में, वो आपको देखना है। उससे आइडिया लगेगा कि भाभा में क्या 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 चीज है, कौन सी मिनिस्ट्री है, क्या की वो सारी चीजें। नेक्स्ट ईयर सर कल तो वो एक एग्जाम है सर, यूपीएससी का एग्जाम है सर, वो देने जाना है 5 जून को, कल नहीं दे पाएंगे सर। सिविल सर्विस का, सर्विसेज का एग्जाम है सर। सिविल सर्विस का आप एग्जाम दे रहे हैं? यस सर। आपकी MSc कब से? अभी सर MSc अभी लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ 21 में सर। तो उसकी तैयारी की थी आपने? सर तैयारी ऑलमोस्ट की थी सर, लेकिन अब बार के एग्जाम के बाद इस इंटरव्यू के ओरिएंटेड प्रिपरेशन की। नहीं कोई बात नहीं, आप कल चले जाना। लेकिन अगर आपको वो तैयारी करनी थी तो आप फिर उस पर ज्यादा ध्यान देते, क्योंकि सिविल का आपने तैयारी की है तो पूरा मोटिवेट वो रहता है ना। लेकिन कोई बात नहीं, आपने तैयारी की तो आराम से देना पेपर अच्छी तरह से। वैसे आपने सही किया, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। कल आप एग्जाम देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर CSP, सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जाम। तो अभी आपका सही परफॉर्मेंस, आप अच्छा आंसर दे रहे हैं। और हम आगे जब एग्जाम आप कल दे देंगे उसके बाद हम आप बता देना, फिर हम अच्छी तरह से और आगे डेवलप करेंगे। टॉपिक वाइज रहेंगे लेकिन उसके अंदर हम डीपली अब डिस्कस करूंगा मैं, है ना, उसके अंदर और क्रॉस क्वेश्चन। तो अभी तो बेसिक आइडिया लग गया कि आपने बेसिक स्टडी की हुई है सारे टॉपिक की। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम अंदर करेंगे हमको, है ना। जरूरी नहीं है 5 सर आज के परफॉर्मेंस से सर कुछ कमियां ऐसी जो इम्प्रूव नहीं, आपने अच्छा किया है।
परफॉर्मेंस आपने अच्छा किया, बेसिक है लेकिन अच्छा किया है, वर्ड पे किया है, बहुत अच्छा, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। अभी और डेवलप होगा, बिल्डअप, अभी तो टाइम है, अभी तो मैं और भी लूंगा आपका, क्योंकि ट्रेंड भी चल रहा है, लोग सब नंबर पे लगे हुए हैं, सबको टाइम दिया हुआ है, ठीक है ना? यस ठीक है, थैंक यू। सर, एक क्वेश्चन और था यस। सर, ये फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हाँ, बेनवेल सफिशिएंट रहेगी के लिए वेनवेल बेस्ट है, वेनवेल वेनवेल सर? बेस्ट, यस, यस बेस्ट। सर एटकिंस पढ़ रहे थे, एटकिंस के अंदर बहुत टफ लैंग्वेज यूज कर रखी है नहीं स्पेक्ट्रोस्कोपी, नहीं, थर्मोडायनेमिक्स के लिए वो अच्छी है सर, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी अच्छी नहीं दे रखी है एटकिंस में। यस यस यस। अभी क्या कि टाइम हो रहा है इसका, क्योंकि 40 मिनट स्टॉप टाइम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग है, तो फिर हम कल ट्राई करेंगे, ठीक है? ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड गुड परफॉर्मेंस। थैंक्स। सर, इसको आपने रिकॉर्ड भी किया हुआ है सर? यस यस, रिकॉर्ड किया है बिल्कुल। ये रिकॉर्डिंग आप सेंड कर देंगे क्या मुझे सर? हाँ हाँ, श्योर श्योर, थैंक यू। ठीक है सर, सर ये मुझे सेंड कर दें। आप ईमेल आईडी भेज देना मुझे, ओके? ठीक है सर, मैं मैसेज कर देता हूँ। ओके ओके, श्योर, थैंक यू।